Good morning students. Now this is my third lecture on continuity. In this lecture we will discuss few important problems, okay, which are very important on the basis of concept of continuity. Okay, so the first problem which I have selected is show that fx equals to x sin 1 by x sin 1 by x when x not equal to 0 and 0 when x equals to 0 is continuous at x equals to 0. So you have to prove that this function fx equals to x sin 1 by x, this function is continuous at x equals to 0. Now we know that to prove that a function is continuous at x equals to 0, what we have to prove? We have to prove that left hand limit equals to right hand limit equals to value of function at x equals to 0. So first we find out solution. First we find out left hand limit. Left hand limit when x approaches to 0 is limit x approaches to 0 from left fx. It will become limit x approaches to 0. So it is h approaches to 0 f0 minus h. Is it correct? So this is the formula to find out left hand limit, and which is equal to limit h approaches to 0 f0 minus h. 0 minus h is not 0. So we have to use this formula. So it is 0 minus h sine 1 upon 0 minus h. H approaches to 0. Limit h approaches to 0 minus h sine 1 upon minus h. Okay, now we know that sine of minus theta is minus sine theta. So it will become limit h approaches to 0 h sine 1 upon h. Now we have to find out value of this limit. Now we know that as h approaches to 0, this quantity approaches to 0. Now what about this quantity? Sine 1 by h as h approaches to 0. Actually, as h approaches to 0, sine 1 by h is a oscillating number between minus 1 and 1. See, the maximum value of sine theta is 1 and minimum value is minus 1. So this is actually 0 multiplied by a finite number between minus 1 and 1. So a finite number between minus 1 and 1, so it will be 0. Now we'll see the graph of this function x sin 1 by x. Now if you look at, this is the graph of x sin 1 by x. इसको अभी देखेंगे हम. ये किसका ग्राफ है? x sin 1 by x का ग्राफ है. ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ हम जा रहे हैं as we approaches to 0 from right. 0 की तरफ अप्रोच करना हमको. किस तरफ से? राइट साइड से. वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट. तो ये जो फंक्शन है, यहां देखोगे ये पूरा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ. ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, बिटवीन minus 1 and 1 sin 1 by x. ठीक है, पर जब ये x से मल्टीप्लाई होता है तो ये किसकी तरफ अप्रोच होता है? 0 की तरफ. और जब हम 0 की तरफ फ्रॉम x approaches to 0 from right लिया तो 0 की तरफ जाएगा. x approaches to 0 from left लिया, x approaches to 0 from left. ये क्या कहलाया? limit x approaches to 0 from right fx will become 0 and limit x approaches to 0 from left fx equals to 0. तो लेफ्ट साइड से जाते हैं तो भी fx कितना है? x sin 1 by x. तो x sin 1 by x लेफ्ट साइड से जाते हैं तो भी 0 की तरफ अप्रोच होता है और राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो भी 0 की तरफ. तो ये तुमको समझ में आएगा कि जब x अप्रोचेस टू 0 है
तो साइन 1/x ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है और ये 0 से मल्टीप्लाई होती है जैसे जैसे x डिक्रीज होता है या 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो ये ओवरऑल किसकी तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये ग्राफ से ये प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ से अभी हम क्या देख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h sin 1/h equals to 0. Okay, similarly you can find out right hand limit. So right hand limit is limit x approaches to 0 plus fx. So you have to approach to 0 from right side. Okay, so this you have to find out. X approaches to 0 from right side. So it will be limit h approaches to 0, f 0 plus h. Again this quantity is 0 plus h. So 0 plus h is not 0. So you have to take this expression x sin 1/x. So it will be limit h approaches to 0, 0 plus h sin 1/0 plus h. So it is limit h approaches to 0, h sin 1/h. ठीक है, फिर से वही बात आ गई, h sin 1/h, h approaches to 0 और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो अभी हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, है ना। हमको मिल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x approaches to 0 minus fx equals to limit x approaches to 0 plus fx और f0 कितना है, देखो f0 भी कितना है, 0। ओके, इक्वल्स टू f0 इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। ठीक है, दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये 0 पे कंटिन्यूअस तो रहेगा पर हम आगे देखेंगे कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट fx इक्वल्स टू sin x/x प्लस cos x when x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 when x equal to 0 is continuous at x equals to 0। ठीक है, अब इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x approaches to 0 from left fx। अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है लिमिट h approaches to 0 f 0 minus h। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट h approaches to 0, f0 minus h. f0 minus h is not equal to 0. So you have to use this function. So it is sin 0 minus h upon 0 minus h cos 0 minus h। ठीक है, तो ये कितना हो गया, लिमिट h approaches to 0, साइन ऑफ माइनस h है ना, साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h एंड कॉस ऑफ माइनस h। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, सो इट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन थीटा और माइनस h, तो ये हो गया साइन h अपॉन h, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा अपॉन cos h। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos h। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, ये होता है 1, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos h, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई 2। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, सो राइट हैंड लिमिट इज, दिस इज द प्रॉब्लम।
So right hand limit. Right hand limit is limit x approaches to 0 from right fx. So this is limit h approaches to 0 f0 plus h. So this is limit h approaches to 0 sine 0 plus h 0 plus h cos 0 plus h. Okay, so this is limit h approaches to 0 sin h upon h and limit h approaches to 0 cos h. So it will become 1 plus 1 equals to 2. Okay, and what is f0? f0 is also 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया? Here limit x approaches to 0 from left fx equals to limit x approaches to 0 from right fx equals to f0. This implies fx is continuous at x equals to 0. ठीक है, तो ये मेथड रहेगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0. तो हमको एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी. ठीक है, एक्चुअल में ये जो फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में ये फंक्शन सेम रहता है. ठीक है, एक्चुअल में कंटिन्यूटी के लिए हमको क्या चेक करना है? हम अगर चेक कर ले लिमिट x टेंड्स टू 0 fx. ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स. ठीक है, तो ये कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0. अभी देखो x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये 1 प्लस 0 1 माइनस 0, ये बचेगा 1 माइनस 1 0 और साइन 0 0, तो 0/0 के फॉर्म में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 ये ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट. अगर ले लिया 0 प्लस, तो 0 प्लस में ये हो गया. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस कैसे निकालते हैं? h टेंड्स टू 0 1 प्लस 0 प्लस h माइनस √1 माइनस 0 प्लस h अपॉन साइन 0 प्लस h. ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 √1 प्लस h √1 माइनस h और साइन h. ठीक है, अभी ये 0/0 के फॉर्म में अगर हम h की जगह 0 रखते हैं तो अभी इसको हम रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0 √1 प्लस h माइनस √1 माइनस h साइन h और इसका कॉन्जुगेट होगा √1 प्लस h प्लस √1 माइनस h √1 प्लस h √1 माइनस h. ठीक है, इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन साइन h 1 अपॉन √1 प्लस h √1 माइनस h. ठीक है, तो ये कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 कैंसिल हो गया 2h. ठीक है, अपॉन साइन h 1 अपॉन √1 प्लस h √1 माइनस h. ऐसा है. ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दे. 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन h अपॉन h
ऐसा लिख सकते हैं, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एच एंड रूट ओवर 1 माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन h की जगह 0 रख दो, तो ये आ गया 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो 1 अपॉन 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी लिमिट आ गई हमारी, राइट हैंड लिमिट। अब इसी तरीके से हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 0 माइनस h, तो हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 0 माइनस h रूट ओवर 1 माइनस 0 माइनस h अपॉन साइन 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रूट ओवर 1 माइनस h रूट ओवर 1 प्लस h साइन ऑफ माइनस h, सो इट विल बी माइनस साइन h। ओके, अब फिर से हम वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h रूट ऑफ माइनस 1 प्लस h माइनस साइन h मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस h रूट ओवर 1 प्लस h, ओके, रूट ओवर 1 माइनस h प्लस रूट ओवर 1 प्लस h, so it will become limit h approaches to 0 a minus b a plus b a square minus b square minus sin h 1 upon root over 1 minus h 1 plus h। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 हो गया कैंसिल, माइनस 2h माइनस साइन h इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस h एंड रूट ओवर 1 प्लस h। ठीक है, ये माइनस भी कैंसिल, 2 बाहर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस h एंड रूट ओवर 1 प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 एंड 1 अपॉन h की जगह 0 रखोगे तो ये आ गया 1 प्लस 1 2, तो ये भी आ गया 1 के इक्वल। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी थी, राइट हैंड लिमिट हमारी 1 थी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 1 हो गई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1। ठीक है, सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स equals to limit x tends to 0 plus fx equals to f0. Okay, so this implies fx is continuous at x equals to 0. ठीक है, तो ये मेथड रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, ये हो गया, क्या फाइंड आउट किया हमने, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की। ठीक है, इसके पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, इसके पहले हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये भी 1 आई थी और f0 भी कितना है, 1 के इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और किसके इक्वल है, f0 के इक्वल। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये मेथड रहेगी सॉल्व करने की क्वेश्चन। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx equals to k cos x pi minus 2x when x less than pi by 2
3 when x equals to pi by 2, 3 tan 2x upon 2x minus pi when x greater than pi by 2. If fx is continuous at x equals to pi by 2, find k. So fx is continuous, it is given. Okay, यहाँ हम क्या लिखेंगे? Since fx is continuous at x equals to pi by 2. Okay, so left hand limit. What is left hand limit? Limit x approaches to pi by 2 from left, fx equals to limit x approaches to pi by 2 from right, fx equals to f pi by 2. ठीक है, तो अभी हमको ये गिवन है, fx is continuous, it is given, and using this you have to find out k. इसके पहले हम क्या करते थे? हम प्रूव करते थे कि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया है तो हम इसको यूज करके k फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, फिर हम राइट हैंड लिमिट की निकालेंगे. ठीक है, और फिर इन दोनों को किससे इक्वेट कर देंगे? 3 से इक्वेट कर देंगे. ठीक है, वैसे तुम एक ही वैल्यू निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, और किससे इक्वेट कर दोगे? f पाई बाय 2 से, तो भी ये आ जाता है क्वेश्चन. ठीक है, तो यहां पे हम केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस fx. अब पाई बाय 2 माइनस कैसे मिलता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h. ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h. ठीक है, पाई बाय 2 माइनस h, तो पाई बाय 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? ये है k cos x और पाई माइनस 2x. तो पाई बाय 2 माइनस h के लिए हम इसको यूज करेंगे, k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस h. ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन h अपॉन पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? पाई और माइनस 2h. ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k साइन h अपॉन 2h, क्योंकि पाई हो गया कैंसिल. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं k अपॉन 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ओके साइन h अपॉन h. तो ये कितना हो गया? k अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किसके इक्वल आ गया? k अपॉन 2. ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, अभी देखो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो तुमको राइट हैंड लिमिट निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस fx इक्वल्स टू f पाई बाय 2. ओके, सो दिस इंप्लाइज पाई बाय 2 माइनस क्या मिला था हमको? k अपॉन 2, है ना. पाई बाय 2 माइनस क्या था? k अपॉन 2. ठीक है, तो ये हो गया k अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू f पाई बाय 2 कितना है? 3. ठीक है, तो यहां से ही हमको k इक्वल टू 6 मिल जाता है. हमको राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पर अगर हमारे पास 2 अननोन रहते हैं तब हमको राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास 2 अननोन है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इज x स्क्वायर प्लस ax प्लस b फ्रॉम 0 to 2, 3x plus 2 from 2 to 4, 2ax plus 5b from 4 to 8. If fx is continuous in closed interval 0 to 8, means from 0 to 8, fx is continuous, find ab. Okay, so you can see here domain of fx is from 0 to 8, closed interval 0 to 8, because 0 is included and 8 is also included here. So what we will write here? Since
fx is continuous on 0 to 8, this implies fx is continuous. अब यहां पे जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, जहां पे नेचर चेंज कर रहा है फंक्शन, उसको देखेंगे. यहां पे देखो 2 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है और 2 के राइट में फंक्शन अलग है. 4 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है और 4 के राइट में अलग है. तो हम केवल 2 और 4 को कंसिडर करेंगे. ठीक है. So since fx is continuous on 0 to 8, fx is continuous at x equals to 2 and x equals to 4. So fx is continuous at x equals to 2 and x equals to 4. This implies limit x approaches to 2 minus fx equals to limit x approaches to 2 plus fx equals to f2. Okay, so this will be, now you calculate this, limit x approaches to 2 minus fx is equal to limit h approaches to 0 f2 minus h. 2 minus h is less than 2, so you have to take this function. So this will be limit h approaches to 0 2 minus h whole square a into 2 minus h plus b. Okay, so this is, if you put h equals to 0, it will become 2 minus 0 whole square a 2 minus 0 plus b. So this is 4 plus 2a plus b. Okay, so this is the value of limit x approaches to 2 minus fx. Okay, so this is first equation. Similarly, you find out limit x approaches to 2 plus fx. 2 plus fx, limit h approaches to 0 f2 plus h. Limit h approaches to 0 f2 plus h. f2 plus h, what you have to take? 2 plus h. You have to take this 3x plus 2. So it will become 3 2 plus h plus 2. ठीक है, 3 2 plus h plus 2. तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? h की जगह 0 रखो. 3 2 plus 0 plus 2, 6 plus 2 8. ये हो गया सेकेंड. ठीक है, और ये हो गया हमारा 2 प्लस. फिर अभी हम देखते हैं f2 की वैल्यू, है ना. तो f2 कितना है? f2 यहां पे 2 रख दो. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, ये भी आ गया 8. तो अभी हमको लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 2 plus fx equals to f2. ये हमको पता है. ठीक है, तो लिमिट x approaches to 2 माइनस हमने कितना कैलकुलेट किया था? 2 माइनस था 2a प्लस b प्लस 4. तो हमने लिख दिया 2a प्लस b प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस कितना कैलकुलेट किया था? 8. तो ये कितना हो गया? 8. और f2 भी कितना है? 8. तो फिर से 8 लिखने की जरूरत नहीं है. हमको क्या मिलेगा? 2a प्लस b इक्वल्स टू 8 माइनस 4. ये हो गया 4. तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गया. ठीक है, तो ये किससे मिला हमको? कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2 से. ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3. ठीक है, अभी हम फिर से दूसरी कंटिन्यूटी चेक करते हैं. किस पे? 4 पे. ये गिवन है कंटिन्यूस. ठीक है, तो अभी हम यहां क्या करेंगे? सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x equals to 4, so limit x approaches to 4 minus fx equals to limit x approaches to 4 plus fx
इक्वल्स टू F4। ठीक है, तो 4 माइनस, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस fx किसके इक्वल रहता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f4 माइनस h। ठीक है, तो ये होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 माइनस h, ये वाला फंक्शन रहेगा 4 के लेफ्ट में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस h और प्लस 2। अब यहाँ h की जगह 0 रख दो, ये आ गया 3 4 माइनस 0 प्लस 2, ये हो गया 14। फिर हम देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस fx, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f4 प्लस h, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 प्लस h। देखो 4 प्लस h में कौन सा फंक्शन लेना हमको? 2ax प्लस 5b। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे f4 प्लस h में 2ax प्लस 5b, तो ये हो गया 2a, x की जगह रखा हमने 4 प्लस h और प्लस b। ठीक है, कौन सा फंक्शन लिया? 2ax प्लस b, और इसमें x की जगह 4 प्लस h रख दिया। अब लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे, तो ये आ गया 2a 4 प्लस 0 प्लस b, तो ये आ गया 8a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे f4 भी अगर हम निकालते हैं, है ना, तो f4 यहां से हम देखते हैं f4 4 के लिए इसको यूज करना है ना, इक्वल टू 4 कहाँ है? यहाँ पे है, इक्वल टू 4 यहाँ है, तो हम 3x प्लस 2 में 4 रख सकते हैं, 4 के लिए ये यूज करना है। तो f4 कितना हो गया? f4 हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 14। ठीक है, तो अभी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमको मिलेगा since limit x approaches to 4 minus fx equals to limit x approaches to 4 plus fx equals to f4. So what you will get? 14, 4 minus से क्या मिला? 14, और 4 प्लस से क्या मिला? 8a प्लस b, और f4 भी क्या है? 14, तो हमको मिल गया 8a प्लस b इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 क्या था? 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 4 है 8a प्लस बी इक्वल टू 14। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। 8a प्लस बी इक्वल टू 14 फ्रॉम 3 एंड 4। 8a प्लस बी इक्वल्स टू 14, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 8a माइनस 2a 6a इक्वल्स टू 14 माइनस 4 10, a इक्वल्स टू 10 अपॉन 6 5 अपॉन 3। ओके, सो a इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। अब b की वैल्यू निकालनी है, किसी एक में रख दो। 2a प्लस b इक्वल्स टू 4, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 3 प्लस b इक्वल टू 4, b इक्वल्स टू 4 माइनस 10 बाय 3, b इक्वल्स टू 12 माइनस 10 अपॉन 3, b इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ओके, so answer, what is answer? A equals to 5 upon 3 and B equals to 2 upon 3. Okay, so this will be the answer. A equal to 3 and B equal to minus 2 we are getting. 4 2a plus b, 2a plus b equals to 4, 2 रखा 8, 2a plus b equals to 4,
answer is coming as 3n minus 2. Okay, so this one is wrong. I think a equals to x equals to 4. 14 x equals to 4. 8a plus 5b. 8a plus 5b. 8a plus 5b. See, in this here, one correction. F4 plus h. F4 plus h. Okay, so here you have to put 2ax plus 5b. Okay, you make it as 2ax plus b. Okay, 2ax plus b. Then it will be f4 plus h. 2a 4 plus h plus b. Okay, then you will get a equals to 5 by 3 and b equals to 2 by 3. Okay, so you make correction in the question. In question it is 2ax plus b only, not 5b. So this was your fifth problem. हाँ, ये आपका होमवर्क रहेगा. होमवर्क देख लीजिए. फाइंड a and b if fx equals to x plus a root 2 sin x, 0 less than or equal to x less than pi by 4, 2x cot x plus b pi by 4 less than or equals to x less than pi by 2, a cos 2x minus b sin x pi by 2 less than or equal to x less than or equal to pi is continuous function. Is continuous function. Then you have to find out a and b. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 माइनस में ये फंक्शन लेंगे, पाई बाय 4 प्लस में ये फंक्शन लेंगे, पाई बाय 2 माइनस में ये लेंगे और पाई बाय 2 प्लस में इसको लेंगे. ठीक है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2. इसको यूज करेंगे. अगेन इन दिस प्रॉब्लम fx इज रूट ओवर 1 प्लस px माइनस रूट ओवर 1 माइनस px अपॉन x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, 2x plus 1 upon x minus 2, 0 less than or equal to x less than or equal to 1. If fx is a continuous function, you have to find out value of p. You will get p equals to minus 1 by 2. ठीक है, यहाँ पे भी हम 0 पे continuity देखेंगे इसकी, because fx is a continuous function means it will be continuous at x equals to 0. In third problem, fx is mod x plus 3, x less than or equal to minus 3, minus 2x, minus 3 less than x less than 3 and 6x plus 2 when x greater than 3. Find all points of discontinuity of fx. So you have to check the continuity of function in its domain. So what is domain of this function? It is defined for all real numbers. Okay, so you have to check the continuity for k less than minus 3, then k between minus 3 and 3, then k greater than 3, and for k equals to minus 3 and k equals to 3 also. Okay, so this you have to check the continuity. X greater than or equal to 3 यहाँ पे. ओके, तो ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है. थैंक यू.